बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लास्ट लेक्चर है 10.1 that was about market structure की efficiency, and we talked about that if suppose we are having a ceiling price at a floor price, तो फिर what will happen to the consumer surplus, producer surplus and general welfare and all. ये मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था. Hope that you understand and I have given you a homework. Take it seriously and I hope that you have done it. But given that nobody has asked me about any of the problem regarding the assignment, so I'm assuming that some of you have attempted, but mostly have not. So guys, get serious because it's final exam coming, and even it's going online, but still exam is exam, so be serious now. So we are done. This is chapter number 9 from your book, by the way, and now I'm going back to chapter number 8, which I left intentionally because I want to have a continuation of supply and demand ताकि ये वाला topic मैं cover करा सकूँ. But now I am going back to the market structure and will start with the perfect competition. Let me show you from your book. This is your book, and that is chapter number 8, profit maximization and comparative supply. So we'll discuss what is profit maximization in the short run, in the long run, supply function कैसा होता है firm का, industry का, short run में, long run में, and all is like side details. So इसमें से 8.1, 8.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी की सारी चीज़ें जो है included हैं. ये whole chapter is included. It's very important as well because it's a basic and the yardstick of the all market structure which we're going to discuss. In total, let me write down here now. So let me open a new session for you. This is, let's write it, lecture, rename. This is lecture 10.3. So basically this is all about market structure. ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8. एंड व्हाट वी आर डूइंग, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर the topic we'll discuss are number 1, what is profit function, okay, and second, what is meaning of maximization of profit, and then short run and long run profit functions, okay, and then we'll talk about concept of TC approach for profit maximization, then MC approach of profit maximization, then we'll talk about supply curve of firm, and so on. There are many topics, so let's not waste time on discussion of it. You'll get to know as we'll be covering with the lecture. So let's get started with the first thing. So what is perfect competition? If we talk about the perfect competition, what is perfect competition? So there are certain features which distinguishes any market structure from other. Since we will be discussing 4 type of market structure containing perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. जिनमें से perfect competition और monopoly को rather हम थोड़ा डिटेल में करेंगे and then we'll discuss थोड़ा सा उसको कम करेंगे. So perfect competition की क्या खास बात होती है, so that we call it perfect competition. There are 4 characteristics of perfect competition. यानी अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो हम उसे कहेंगे कि ये परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट है. वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? नंबर 1, नंबर ऑफ sellers and buyers. Number of buyer, number of sellers. Number 2, price. Firm is price taker. मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, आप इसको लिखिए. Firm is price taker. Number 3, homogeneous product. ओके, और चौथी चीज क्या होती है?
free entry and exit from the market. So coming back to the first number of seller, number of buyer. तो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर we have many numbers, infinitely many number of sellers and buyers. Why it is important? In order to understand it, take a contradiction. Suppose करो कि किसी मार्केट में number of sellers कम हो, तो उससे क्या होगा? Supply कम होगी, and when there is a shortage or less supply in the market, so what will happen? That the things will be sold at very high price. So price start getting up. So relaxation of the condition of number of sellers result in changes in prices. But in this structure, since the next assumption is that the firm is price taker, so price is given. ठीक है? तो इस तरह से number of sellers should be there. Number of buyer में भी यही है कि if there are less buyers, number of buyers का मतलब है बहुत ज़्यादा, infinitely many buyers हैं. Whatever is being supplied in the market is being demanded by the buyers. लेकिन अगर suppose buyer कम होंगे तो same problem के short excess supply की वजह से price increase करेगी. So in order to keep price fixed, this structure requires that there should be number of sellers and number of buyers. And since there are many sellers, if some seller wants to increase the price, nobody will buy from it and he will be quit out of the market. So इसी तरीके से कोई कम करेगा तो वो भी नहीं sustain कर पाएगा, क्योंकि since there is a high competition and everybody is purchasing is producing at its cost, so it's not really possible to reduce the price much below the market price, क्योंकि in that case the firm would not be able to survive. So the firms in the market are taken as price taker. Price taker का मतलब है कि they are not price maker. They cannot set the price according to their will. In fact, the price is settled by the by supply and demand in the market, and whatever the price is adjusted by the forces of supply and demand, each firm take it as it is and then think of that what is the quantity they should produce such that they can make some profit. तो प्राइस टेकर बिहेवियर इसको कहते हैं, प्राइस टेकर बिहेवियर. सो ऑल द फर्म्स इन द मार्केट आर प्राइस टेकर. सो प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि जो मार्केट होती है जहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटीज है, यहाँ पे प्राइस है, एंड दिस इज डिमांड. ये इंडस्ट्री का डिमांड है, ये इंडस्ट्री है. ठीक है जी, ये इंडस्ट्री का सप्लाई है, ये इंडस्ट्री का डिमांड है, एंड दिस इंडस्ट्री determines a price level P bar, and every firm industry is sum of firms. तो हर जो ये इंडिविजुअल फर्म का ग्राफ है जिसको हम स्मॉल क्यू कहेंगे, यहाँ पे प्राइस कहेंगे. सो द फर्म टेक द प्राइस. ये जो प्राइस मार्केट में डिटरमिन हुई है इसको गिवन लेगी. गिवन का मतलब क्या है कि दे कैन नॉट चेंज प्राइस. व्हाट डज इट मीन? द प्राइस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल जस्ट लाइक दिस. ठीक है जी. अब आप देखोगे फर्स्ट यूनिट भी उसी पे सेल होगा, दूसरा यूनिट भी, एंड एवरी यूनिट फर्म सेल विल सेल एट अ कांस्टेंट प्राइस. और वो प्राइस क्या है? पी बार. और वो कहाँ से आ रही है? वो इंडस्ट्री की सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस से आई है. the forces determines that what should be the price prevailing in the market, and once the price is determined by these sources, that each firm in the industry is taking the prices as given, and they would have to sell the product at the same price. So this is called price taking behavior. इसके opposite होता है price making behavior, जिसके अंदर firm does not take the price as given but they adjust the price and set the price according to their desire. So that is a different market structure which will be discussed later. तो पहली चीज क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ बायर. दूसरी होगी प्राइस टेकर बिहेवियर. तीसरी है होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजेनिटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर नहीं है जो किसी दूसरे से डिफरेंशिएट करे. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन, if the products are not homogeneous but heterogeneous, so the differentiation of product calls upon that the producer will sell the product at a differentiated price. Since the price taker behavior is adopted by the firm, so it is stringent upon that the firms are selling homogeneous products such that price does not vary because of the differentiation of the product. तो ये हमारा एक फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का कि हर फर्म जो है वो तकरीबन एक सी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट. जनरली बिजनेस के अंदर एंट्री और एग्जिट की कोई कॉस्ट होती है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक दिस एनालिसिस सिंपल वी आर अज्यूमिंग दैट द एंट्री इज फ्री and the exit is free. Somebody is basically making losses, they can exit the market. Somebody wants to enter because they find it's attractive, they can enter the market.
and entry and exit does not have any cost or fine or fee, तो फ्री है। तो ये 4 फीचर्स हो गए, 4 फीचर्स क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं एंड देन सी के, अब ये फर्म है, ये जो फर्म है ये परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है। तो व्हाट दे आर लुकिंग अप टू, एवरी फर्म इज लुकिंग अप टू गेट प्रॉफिट, नॉट द प्रॉफिट बट द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो द नेक्स्ट टारगेट शुड बी दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज होती है जिसको वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो प्रॉफिट का सिंबल होता है ये पाए, और प्रॉफिट इज ऑलवेज डिफाइंड एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू क्या चीज होती है, टोटल रेवेन्यू होती है कि भाई जितना आपने यूनिट सेल किए हुए हैं एक फर्म ने, और ये हम किसका बिहेवियर शो कर रहे हैं, ये हम फर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म को डिफाइन कर रहे हैं और उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चेक कर रहे हैं। सो फर्म क्या बनाती है, दे प्रोड्यूस क्वांटिटीज एंड व्हाट दे डू, दे सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, सेम प्राइसेस। वो प्राइस कहाँ से आती है, वो प्राइस इंडस्ट्री से सेट होती है एंड इट्स टेकन एज गिवन। सो आई एम पुटिंग अ बार ऑन पी। So P bar into Q is the total revenue the firm will earn by selling Q units of output in the market at same price P bar. Every unit is being sold at P bar. What is cost? And we are aware of the cost of the firm. So cost को हम symbol C से represent करते हैं और क्योंकि ये Q पर depend करती है, so I am writing a in bracket Q. ये bracket का मतलब ये नहीं है कि C और Q multiply हो रहे हैं. It's just mean that C depends on Q. It's a functional form. ठीक है जी, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अच्छा अब ये अगर प्रॉफिट फंक्शन हो गया तो क्या इसका जो है हाउ वुड इट लुक लाइक, अगर हम इसको ग्राफिकली पोर्ट्रे करें। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं टोटल रेवेन्यू का, लुक टोटल रेवेन्यू मेरे पास क्या चीज है, प्राइस बार इनटू क्वांटिटी। तो ये किस किस्म की इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, इसको हम ऐसा करते हैं कि ये वाली लाइनें ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एक ग्राफ बनाऊं, ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक और लाइन है, और ये हमने इस तरह से करके ग्राफ बना लिया। यहाँ पर है हमारे पास क्वांटिटी और यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बना रही हूँ। टोटल रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ये देखिए टी आर वाई एक्सिस पे क्यूज पे। तो अगर ये वाली इक्वेशन देखें तो ये अपन देखो ये वाई एक्सिस पे आ रहा है और ये क्यू एक्स एक्सिस पे आ रहा है। और तो ये किस किस्म का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो पी बार है और पी बार एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। कैसी बनेगी, मैं यहाँ से एक लाइन देके इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। सो ये कुछ ऐसे करके टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनेगा विच इज प्राइस पी बार इंटू क्यू। ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट जो है, अगर आपको याद हो जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे, अगर मैं देखूं ये कहाँ पे थे ये वाले लेक्चर को, कॉस्ट थ्योरी, ये देखिए ये नजर आई, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये है टोटल कॉस्ट। तो ये अगर मैं टोटल कॉस्ट का फंक्शन प्लॉट करना चाहूँ अपने इस वाले ग्राफ में, तो कैसा नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। तो मैं यही ग्राफ उठा के यहाँ पर ऐड करती हूँ। कैसे था वो, वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होती है लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है, ऐसे करके जाती है, फिर ऐसे करके होती हुई, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट और ये है टोटल रेवेन्यू। ठीक है। अब ये क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द प्रॉफिट इज द गैप बिटवीन टी आर एंड टी सी। अच्छा अब ये देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर कौन सा गैप है। हाँ, हम देखेंगे किसके ऊपर क्या गैप है। तो अगर इफ यू जस्ट स्टार्ट विद इधर से ड्रॉप आते हैं, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये देखो ये हमने ये है ना लाइन ले लेते हैं। कैन यू सी दिस थिंग, ये लाइन क्यों मैंने लगाई है, ये लाइन मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है कि आई वांट टू सी के, ये देखो दिस इज द क्वांटिटी द फर्म स्टार्टेड विद, सपोज कर लें। हाँ,
what is total revenue to produce this quantity? When they produce this quantity and sell in the market at P bar, how much revenue they will earn? तो मैं revenue line के पे जाऊंगी. revenue line ये है, तो इतना जो height है, ये वाला, ये जो point है, let's say point A, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q1A जो है टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. किस क्वांटिटी से? Q1 से, जो कि उसने मार्केट में सेल की है. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q1, तो आप Q1 लाइन को ले जाएं टोटल कॉस्ट फंक्शन तक, और वो पॉइंट है लेट्स से B. तो BQ1 जो है वो टोटल कॉस्ट है. कौन सी चीज बड़ी है? टोटल कॉस्ट बड़ी है. कितनी? ये जो गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप, जिसको मैं अब सपोज कर लो कि रेड पेन से निकाल देती हूँ, ये जो गैप है, ये है टोटल कॉस्ट एक्सीड करी टोटल रेवेन्यू से. तो ये क्या चीज है? जब कॉस्ट रेवेन्यू से एक्सीड करती है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं या लॉस कहते हैं? तो ये लॉस है. ठीक है जी, तो ये लॉस है. जहां तक, अब आप देखो कि यहां से लेके यहां तक, लेट्स कॉल इट्स पॉइंट, लेट्स से सी कह दें, इस पॉइंट को आप डी कह दो. ठीक है जी, सी पॉइंट तक अगर आप देखो तो टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो थ्रू आउट ऊपर है, और टोटल रेवेन्यू का कर्व थ्रू आउट नीचे है. किस क्वांटिटी लेवल तक? इसको कह दो आप Q2 कह दो, है. Q2 तक टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से एक्सीड कर रही है. इसका मतलब है जब फर्म अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो Q0 से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक जाते 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 Q2 तक क्या होगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से एक्सीड करेगी, एंड दैट द फर्म विल एंड अप इन लॉसेस. और जनरली भी ऐसा ही होता है कि जब फर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो उसको लॉस होता है. तो वो लॉस वर्टिकल डिस्टेंसेस है, ये वाले जो ये मैं इधर से हाईलाइट कर रही हूँ, सब लॉसेस है. ठीक है, ये लंबी लाइन का मतलब है, ये लाइन मैं नीचे तक लेके जाऊंगी और मैं कहूंगी अगर ये वाली क्वांटिटी है तो उसका कॉरेस्पोंडिंग लॉस इतना है, अगर ये वाली क्वांटिटी है तो इतना है, एंड सो ऑन. ये पूरा का पूरा एरिया जो है टोटल कॉस्ट जो है एक्सीड कर रही है टोटल रेवेन्यू से. व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट सी? व्हाट इज हैपनिंग एट सी? व्हाट इज हैपनिंग एट सी? एट सी टोटल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन. ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट है, यानी कि अब फर्म ने इतने रेवेन्यूज जनरेट कर लिए हैं कि कम से कम वो अपनी कॉस्ट को कवर कर रहा है. अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? इफ यू जस्ट लुक एट दिस लाइन, ये वाला पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये कोई मैंने आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट उठाया, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैंने पॉइंट उठाया और लेट्स कॉल इट ई एफ कह दें इसको. ठीक है जी, ई एफ, और इसको कह दें आप Q4 कह दें. तो Q4 पे क्या हो रहा है, कितना टोटल रेवेन्यू है, इस पॉइंट से पता चलेगा. ये टोटल रेवेन्यू का पॉइंट है, और Q4 पे कितनी कॉस्ट है, ये जो वर्टिकल हाइट है ये टोटल कॉस्ट है. तो कौन सी चीज ज्यादा है? टोटल रेवेन्यू ज्यादा है. तो ये जो चीज है, ये जो डिफरेंस है, ये क्या चीज है? ये लॉस है कि प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है. इसका मतलब है कि जितने भी ये वर्टिकल लाइंस हैं, they represent the relevant level of profit which the firm is incurring once they are selling their products in the market. ये जितनी भी वर्टिकल सीधी लाइंस है, ये सारी की सारी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है उन क्वांटिटीज के साथ जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है. और ये कहाँ तक जा रहा है? ये इस पॉइंट पे जा रहा है. अगर आप देखो तो ये जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ये थ्रू आउट ऊपर है, टोटल कॉस्ट थ्रू आउट नीचे है, एंड दिस गैप इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड देन देयर इज अ पॉइंट वेयर इट दिस गैप इज मैक्सिमम. और वो पॉइंट कहाँ पर आता है? वो यहाँ पर कहीं आएगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. सपोज करें कि मैं इसको रेड कलर की लाइन से हाईलाइट कर देती हूँ. तो बेसिकली ये है कुछ इस तरह की सिचुएशन है. सही है जी, ये वाली सिचुएशन है कुछ ये अभी में. सो एनीवेज क्या हुआ, और उसके अच्छा इसके बाद डी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? फिर टोटल कॉस्ट ऊपर जा रही है, टोटल रेवेन्यू नीचे जा रहा है. सो फिर से लॉसेस है. तो ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक क्या है? लॉस. सी पे क्या है? ब्रेक इवन. सी से लेके डी तक क्या है? प्रॉफिट. प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? पॉजिटिव प्रॉफिट. और उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर ब्रेक इवन और फिर लॉसेस. ठीक है जी, डी के ऊपर फिर ब्रेक इवन है, और फिर आफ्टर डी देयर आर लॉसेस. तो अगर हम इस डायग्राम को देखें